کراچی میں راؤ انوار کے ہاتھوں خواجہ اظہار کی گرفتاری پر تہلکہ، سنسنی، ایکشن اور ڈرامہ کئی گھنٹے چلتا رہا۔ پولیس کا بفر زون میں ایم کیو ایم رہنما کے گھر پر چھاپا۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں مصروف خواجہ اظہار گھر پہنچے تو گرفتار کر لیا گیا۔ فاروق ستار کی مزاحمت کام آئی، نہ خواتین روک سکیں۔ پولیس نے ہتھکڑی لگائی، بختر بند میں ڈالا اور تھانے لے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر رہائی مل گئی۔ بغیر اجازت خواجہ اظہار کی گرفتاری پر وزیر اعلیٰ شدید برہم۔ پہلے ایس ایچ او سہراب کو معطل کرنے سے بات نہ بنی تو ایس ایس پی راؤ انوار کو بھی گھر بھجوا دیا۔ ڈی آئی جی ایسٹ کامران فضل صبح بدر، وزیر اعظم نواز شریف کا مراد علی شاہ کو فون، کہتے ہیں غلط کام ہوا تو پولیس افسر کو سزا دی جائے۔ انہوں نے ابھی تک جو ہے الطاف حسین سے بالکل الگ نہیں ہوئے ہیں اور یہ ان کی وہیں کی تمام ہدایت پہ یہ کام کریں۔ مزید یہ کارروائیاں کریں گے۔ ساؤتھ افریقہ سے انہوں نے ٹیمیں بلائی ہیں جو کہ شہر میں جہاں بھی ایزی ٹارگٹ ہوگا وہ کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے۔ دبنگ ایس ایس پی معطل ہو گئے لیکن انداز وہی جارحانہ۔ کہتے ہیں خواجہ اظہار ٹارگٹ کلرز کا چیف کہا جاتا ہے۔ گرفتاری کے لیے اسپیکر کی اجازت ضروری نہیں، فاروق ستار کو بھی پکڑنا چاہیے۔ سندھ سرکار پر تنقید، بولے پہلی حکومت ہے جس نے ملزم پکڑنے پر معطل کر دیا۔ رہائی کا حکم دینے سے رہائی نہیں ملتی۔ پولیس کا مورال ڈاؤن اور شہر میں سائیڈ ایفیکٹس نظر آئیں گے۔ معاملہ ایم کیو ایم دشمنی ہے۔ خواجہ اظہار الحسن کل تک مطلوب نہیں تھے، آج مطلوب ہو گئے۔ مجھے کہا وارنٹ ہے، وارنٹ نہیں دکھایا گیا۔ سارے ایم این ایز گرفتاری دے دیں۔ اس ذلت اور رسوائی سے بہتر ہے کہ ہم وہ سب ماس اریسٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ خواجہ اظہار کی گرفتاری، ایم کیو ایم کا احتجاجی پٹری پر چڑھنے کا فیصلہ، اجتماعی گرفتاریوں کی پیشکش۔ فاروق ستار کہتے ہیں راؤ انوار سے وارنٹ مانگتا رہا، اس سے زیادہ جمہوریت کی بے توقیری کیا ہوگی؟ متحدہ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم بتا دیں وہ کراچی والوں سے کیا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں نے محمد ایجنسی کو خون میں نہلا دیا۔ نماز جمعہ کے دوران مسجد میں خودکش دھماکہ، 28 افراد شہید، 29 زخمی، 6 کی حالت تشویشناک۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، تحقیقات جاری۔ عمران فاروق قتل کو 6 سال مکمل، تحقیقات آج بھی نامکمل۔ پاکستان میں گرفتار ملزموں کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے پروسیکیوٹر تک مقرر نہیں کیا جا سکا۔ لندن پولیس نے 6ٹی برسی پر قتل منصوبہ بندی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ ڈرائیو مارچ، کپتان نے ڈیٹ فکس کرنے کے لیے اتوار کا دن چن لیا۔ چیچا وطنی میں سیاسی میلہ، عمران خان کہتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ ہو نہ ہو مارچ ضرور ہوگا۔ میاں صاحب فیتے کاٹنے سے آپ بچ نہیں سکتے۔ ایاز صادق کو اسپیکر کہنے سے اسپیکر کی توہین ہوگی۔ کی نظر ہے اس لیے بتا دوں، امریکہ جانے سے قبل وزیر اعظم کی عسکری اور کشمیری قیادت سے مشاورت۔ آرمی چیف سے ملاقات میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ مظفر آباد میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں کو اعتماد میں لیا۔ کہتے ہیں پاکستان مسئلہ کشمیر کو ہر فورم پر اٹھائے گا۔ میئر کراچی مزید مشکل میں پڑ گئے۔ پولیس نے پرانے مقدمات کی پٹاری بھی کھول دی۔ سانحہ 12 مئی اور الطاف حسین کی اشتعال انگیز تقاریر سے متعلق الگ الگ کیسز میں چالان منظور۔ مقدمات انسداد دہشت گردی عدالت کو بھجوا دیے گئے۔ کراچی کی نامعلوم افراد سے جان نہیں چھوٹی۔ متحدہ کے بانی کی سالگرہ سے ایک روز قبل مذموم حرکتیں، کئی مقامات پر وال چاکنگ، مبارک باتوں کے پیغامات تحریر کر دیے۔ اس سے قبل بھی بینرز کے ذریعے پولیس کی دوڑیں لگوائی گئیں۔ ہیلمٹ ہونا چاہیے لیکن بغیر منہ نہ ڈھکا ہوا ہو تو ویئرڈ لگے گا، بٹ اسٹل سیفٹی از فرسٹ۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پیچھے والے کا ڈینجرس ہوتا ہے کہ وہ گر سکتا ہے، اس وجہ سے سب کو پہننا چاہیے۔
जितनी सवारियां उतने हेलमेट। कराची में मोटरसाइकिल वालों पर नई पाबंदी का इतलाक। मियां साहब अकेले निकले हैं तो एक, बेगम साहिबा के साथ हैं तो 2 का बंदोबस्त कर लें। माशाअल्लाह से 3-4 बच्चे हैं तो फी बच्चा भी एक खरीदना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध ने सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी कर दी। डायरेक्ट करी ग्रीन हो गया, जब ग्रीन हो गया तो मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड एक्सीलरेट कर दी कि ये सिग्नल फ्लैश करते हैं, काबिलियत बात अभी नहीं है। और दूसरा बात ये कि ये सिस्टम अभी ट्रैक पे चल रहा है। हादसे का जिम्मेदार आदि सिस्टम है जो अभी तरह मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर रहा। मुल्तान ट्रेन हादसा कैसे पेश आया? एक्सप्रेस न्यूज न सिर्फ हकाइक सामने लाया बल्कि ड्राइवर को भी ढूंढ निकाला। हादसे से पहले 2 सिग्नल ग्रीन मिले, लाल बत्ती का इशारा मिलते ही गाड़ी रोक दी। मालगाड़ी का टेल लैंप भी नहीं जल रहा था। ड्राइवर का इंकशाफ, ट्रेनों का निजाम एक बार फिर नए से पुराने सिस्टम पर मुंतकिल। पुलिस अफसरों के बैरूने मुल्क सैर सपाटों की कहानी अब खत्म। अब ट्रेनिंग के लिए सिर्फ अहल जवान ही फ्लाइट पकड़ेंगे। पंजाब हुकूमत ने पॉलिसी जारी कर दी, जो एक बार घूम फिर आया वो दोबारा नहीं जा सकेगा। मेरिट पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। फिक्शनल स्टोरीज हैं, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं होती। चांद ग्रैंड एक साइकिल कंप्लीट होता है जिसकी वजह से वो चीज़ें आपस में आ जाती हैं। छुरी से कोई चीज़ काटी जाए तो होंठ भी जनाब कट जाता है। और चौधरी का चांद पूरे आबोताब के साथ आसमान पर निकला तो बुरी नजर भी ताक़ुब में लग गई। 9:55 पर हुस्न मान पड़ना शुरू होगा। 11:55 पर मुकम्मल गहना जाएगा। 2 बजे से पहले चांदनी लौट आएगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन को 5 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। राव अनवार ने मुतहिदा रहनुमा के घर पर छापा मारा, फिर हथकड़ी लगाकर थाने ले गए थे। वजीर आला सिंध ने फौरी नोटिस लिया, फौरी एक्शन हुआ। SSP मलीर राव अनवार को मुअत्तल कर दिया। DIG ईस्ट कामरान फजल को भी काम से रोक दिया गया और खिदमात विफाक के सपुर्द पुलिस अफसर को दे दी गई। और यह भी कहा गया कि पुलिस अफसर कसूरवार साबित हो तो सख्त सजा दी जाए। जी हाँ, वजीर आजम स्पीकर की इजाजत के बगैर किसी रुकन असम्बली की गिरफ्तारी बगैर कानूनी, ऐसा कहा वजीर आजम ने। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस अफसर कसूरवार साबित हुआ तो उसे सख्त सजा दी जाए। आपको खबर दें, स्पीकर की इजाजत के बगैर किसी रुकन असम्बली की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। विफाक ने नोटिस दिया, वजीर आजम ने ये अहम बयान भी दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। आपको बताएं, ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन को 5 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। कराची में पल पल करवट लेने वाले छापा ऑपरेशन का आगाज तब हुआ जब ख्वाजा इजहारुल हसन वजीर आला मुराद अली शाह के साथ वजीर आला हाउस में मौजूद थे। इस दौरान अचानक खबर आई कि ख्वाजा इजहार के घर छापा पड़ गया है। ख्वाजा इजहार घर पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले ही वजीर आला सिंध ने राव अनवार के मातहत SHO सोहराब गोट फसीउस जमा को मुअत्तल कर दिया। SHO दुहाई देता रह गया कि उसने छापा नहीं मारा, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। अभी ये मामलात चल ही रहे थे कि SSP मलीर राव अनवार मैदान में कूदे और ख्वाजा इजहार के घर छापा मारने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। SSP मलीर राव अनवार दोबारा भारी नफरी के साथ ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पहुंचे और मीडिया की मौजूदगी में सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर को हथकड़ी लगा दी। ना MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार की मज़ाहमत काम आई और ना ही मौका पर मौजूद खवातीन कुछ कर सकीं। राव अनवार के साथ आने वाले एहलकारों ने ख्वाजा इजहार को बख्तरबंद गाड़ी में डाला और साथ ले गए। ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी की गर्मा गर्म खबर मिली तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पहले SSP मलीर राव अनवार को मुअत्तल और फिर उनके बॉस DIG ईस्ट डॉक्टर कामरान फजल को सूबा बदर कर दिया। उसी वजह से तो सस्पेंड किया है ना, उसको सजा मिलेगी अगर उसने भी काम गलत किया होगा उससे। कराची में सियासी हलचल इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वजीर आजम नवाज शरीफ को भी नोटिस लेना पड़ गया।
وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو فون کر کے شدید غم و غصے کا اظہار بھی کیا۔ معطل ایس ایس پی راؤ انوار گرفتاری کے بعد خواجہ اظہار کو تھانہ گڈاپ ٹاؤن لے گئے اور گرفتاری بھی ڈال دی۔ دوسری طرف سندھ پولیس میں بھونچال آیا رہا اور ایک ایک کر کے اعلیٰ حکام تھانے پہنچنا شروع ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے خواجہ اظہار کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایس ایس پی ویسٹ پیر محمد شاہ تھانہ گڈاپ پہنچے اور خواجہ اظہار کے منہ پر چادر ڈال کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے گئے۔ واسق محمد، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ معطل ہونے کے بعد ایس ایس پی ملی راؤ انوار کی دھواں دار پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ خواجہ اظہار کو تمام ٹارگٹ کلرز کا چیف کہا جاتا ہے، فاروق ستار کو بھی گرفتار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا گرفتاری کے لیے اسپیکر کی اجازت کی ضرورت نہیں، یہ پہلی حکومت ہے جس نے ملزم کو گرفتار کرنے پر معطل کر دیا ہے۔ میری معطلی کے بعد اب بہت سی باتیں سامنے نہیں آ سکیں گی، ایسا کہا راؤ انوار نے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا یہ پہلی حکومت ہے جس نے ملزم کے گرفتار ہونے پر معطل کیا، جس طرح مجھے معطل کیا گیا، ہو سکتا ہے پولیس کی نوکری چھوڑ دوں۔ راؤ انوار نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شہر میں مزید کارروائیاں کریں گے، ساؤتھ افریقہ سے لوگ منگوائے ہیں۔ راؤ انوار جنہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ ملیر کے دبنگ ایس ایس پی راؤ انوار معطل تو ہو گئے، لیکن ان کا جارحانہ انداز جوں کا توں ہے۔ ایس ایس پی ویسٹ خواجہ اظہار کو گڈاپ تھانے سے لے کر کراچی پولیس آفس نکلے تو راؤ انوار میڈیا کے سامنے اظہار خیال کرنے پہنچ گئے۔ حسب توقع انہوں نے آتے ہی پہلے تو کسی بھی قانون یا ضابطے کی خلاف ورزی کرنے کی سختی سے تردید کی۔ اسپیکر سے کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے، مجھے آئی جی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی جی کمانڈر ہیں سندھ کے پورے، پولیس روزانہ کتنے لوگوں کو گرفتار کرتی ہے؟ 302 میں کیا سب آئی جی سے پوچھتے ہیں؟ ایک ایف آئی آر ہوئی ہے، ایک سب انسپیکٹر کو یہ پاور ہے کہ وہ بغیر کسی پرمیشن اور بغیر کسی اجازت کے قابل دست اندازی جرم میں کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح ایسے نیگیٹو لوگوں کا ساتھ دیا گیا تو یہ جو ہے حالات کراچی کے اور مزید زیادہ خراب ہیں۔ اس کے بعد راؤ انوار نے خواجہ اظہار الحسن کے خلاف چارج شیٹ بھی جاری کر دی۔ کراچی میں پچھلے دنوں بسوں کو آگ لگائی گئی، اس کے علاوہ کراچی نیو کراچی میں کافی ٹارگٹ کلنگ ہوئی اور تمام ٹارگٹ کلروں کا ان کو چیف بھی کہا جاتا ہے۔ مجھے کسی ایجنسی نے نہیں کہا۔ شہر میں آپ کو بتا دوں مزید یہ کارروائیاں کریں گے، ساؤتھ افریقہ سے انہوں نے ٹیمیں بلائیں گے جو کہ شہر میں جہاں بھی ایزی ٹارگٹ ہوگا وہ کوئی نہ کوئی کارروائی کریں۔ چند منٹوں میں موجودہ سے سابق ایس ایس پی بننے والے راؤ انوار نے اپنی معطلی کا فیصلہ کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ پہلی ہے نا سندھ میں حکومت ہے جو کسی کو گرفتار کرنے پہ کسی کو معطل کرتی ہے، اور میری معطلی کے بھی ان کو پتہ چل جائے گا اس شہر میں کیا سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شہر میں آپریشن ہوا ہے، جو امن آیا ہے، یہ سب دوبارہ ہے نا جو ہے خراب ہو جائے۔ جس طریقے سے یہاں کام کرنے سے روکا جا رہا ہے اس طریقے سے تو شاید میں اب ہے نا اس پولیس ڈپارٹمنٹ کو خیر آباد کہہ دوں۔ راؤ انوار جاتے جاتے پولیس ڈپارٹمنٹ کی اندرونی سیاست کا پردہ بھی چاک کر گئے۔ ڈاکٹر کامران فضل کا تو کوئی جرم نہیں ہے، ان کا تو کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ میں نے ان سے کوئی ان کو بتایا نہ ان سے اجازت لی۔ یہ ہمارے پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے آپس کی بھی گروپنگ ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سی ایم صاحب یا کسی گورنمنٹ کو بیس گائیڈ کر کے ان کو بلا وجہ ٹرانسفر کیا۔ ایک سوال کے جواب میں راؤ انوار کا کہنا تھا انہوں نے آصف زرداری کے کہنے پر خواجہ اظہار کو گرفتار نہیں کیا تھا، اگر ان کے کہنے پر ایسا کرتے تو وہ انہیں معطل نہ ہونے دیتے۔ راہیل سلمان، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ اسی سے جڑی اہم خبر، ایم کیو ایم رہنماؤں کا نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا حکم قابل ستائش مگر عملاً کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خواجہ اظہار کی گرفتاری، وزیر اعلیٰ زیرو ٹالرنس دکھائیں، جمہوریت کا چہرہ خراب کرنے والی کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ معطل ایس ایس پی کس حق سے پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ ایم کیو ایم رہنماؤں کی یہ نیوز کانفرنس جن کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا حکم قابل ستائش مگر عملاً کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خواجہ اظہار کی گرفتاری، وزیر اعلیٰ زیرو ٹالرنس دکھائیں، جمہوریت کا چہرہ خراب کرنے والی کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ معطل ایس ایس پی کس حق سے پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ ایسا کہنا تھا ایم کیو ایم رہنماؤں کا۔
अभी आपको बताया एमक्यूएम के सरबराह फारूक सत्तार ने ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। कहते हैं इस इकदाम से ज्यादा जमहूरियत की और क्या रुसवाई हो सकती है, मुत्तहिदा को दीवार से लगाया जा रहा है। उन्होंने इज्तिमाई गिरफ्तारियों की पेशकश करते हुए बोले कि कराची के लोग इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजीद जानते हैं वकील राव से। अब इस शहर के लोग ये जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एमक्यूएम के रहनुमा और सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी पर मुत्तहिदा के सरबराह फारूक सत्तार फट पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में बताया वो ख्वाजा इजहार का जुर्म पूछते रहे मगर कोई जवाब नहीं मिला। बगैर किसी वारंट के, मुझे कहा वारंट है, वारंट नहीं दिखाया गया। मुझे कहा इल्जाम है, इल्जाम नहीं दिखाया गया। और मुझे भी ज़रबे लगी हैं, मुझे भी धक्के दिए गए। मैं पहले ही, मेरा लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट पहले ही मेरे टिश्यू और पट्टे डैमेज हैं। फारूक सत्तार ने गिरफ्तारियों और छापों के मामले पर सियासी जमातों के कायदीन, वजीर आजम और दीगर आला हुक्काम से मुदाखलत की अपील की। ये किसका एजेंडा है, ये किसकी पॉलिसी है, आप कराची वालों से चाहते क्या हो? अगर सारे एमएनएस गिरफ्तारी दे दें, सारे एमपीएस गिरफ्तारी दे दें, सारे सेनेटर्स गिरफ्तारी दे दें, मेयर पहले ही अंदर है, डिप्टी मेयर गिरफ्तारी दे दें, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, खुदा की कसम इस जिल्लत और रुसवाई से बेहतर है कि हम वो सब मास अरेस्ट देने के लिए तैयार हैं। एमक्यूएम के सरबराह फारूक सत्तार ने पुलिस एक्शन की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी का हुक्म देने वालों के नाम और इस कार्रवाई की वजूहात बताई जाएं। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची पुलिस के चैंपियन अफसर राव अनवार अताब में आ गए। हर मर्ज की दवा समझने वाले एसएसपी को एमक्यूएम पर इल्जाम तराशी पहले भी महंगी पड़ी थी। अब दोबारा ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी ने इन्हें मुश्किल में डाल दिया है। राव अनवार 2013 से अब तक 3 बार मुअत्तल हो चुके हैं। ये माजरा है क्या, आप भी जान लीजिए। मुख्तलिफ रिकॉर्ड बनाने वाले कराची पुलिस के मुतनाज़े अफसर राव अनवार ने मुअत्तलियों का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। एमक्यूएम पाकिस्तान के तर्जुमान ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी भारी पड़ गई। हर मर्ज की दवा माने जाने वाले राव अनवार 3 साल में 3 बार मुअत्तल हुए। कलअदम तंजीमों के दहशत गर्दों को इबरत का निशान बनाने पर जहां उन्हें तरक्कियां मिली, वहीं जाली पुलिस मुकाबलों के इल्जामात भी उनके दामन पर मौजूद हैं। कराची में टैंकर्स माफिया से निमटना हो या सड़क जैम करके जलसा करने वाले पीटीआई रहनुमा फैसल वावदा के खिलाफ एक्शन लेना हो, हर मौके पर राव अनवार का ही इंतखाब किया जाता रहा। बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटने वाले राव अनवार ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी पर भी जेरे अताब है। पहली बार राव अनवार को मार्च 2013 में साने अब्बास टाउन पर अदालत ने सो मोटो एक्शन लेकर मुअत्तल किया था, जबकि दूसरी बार अप्रैल 2015 में बानी एमक्यूएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें ले डूबी। राव अनवार को तीसरी बार मुअत्तल किया गया है और अब मुअत्तली का परवाना वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जारी किया है। बगैर बताए ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी पर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी भी उनसे नाराज हैं। 2 बार तो सिंध के बड़ों से दोस्ती राव अनवार के काम आ चुकी है। अब देखना यह है कि इन्हें तीसरी बार भी चांस मिलता है या नहीं। यहाँ आपको बताएं, मोहम्मद एजेंसी की तहसील अंबार में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश हमले में 28 अफराद जाँ बहक और 31 जख्मी हो गए। 7 जख्मी सीएमएच पेशावर भी मुंतकिल किए गए। तफसीलात बता रहे हैं सईद बाचा। मोहम्मद एजेंसी में दहशतगर्द वार कर गए। तहसील अंबार के इलाके बटमीना में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका हो गया। असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट मोहम्मद हसीबुर रहमान और नवीद अकबर ने धमाके की तस्दीक करते हुए बताया कि 28 जख्मी बाजोड़ और 1 मोहम्मद में जेरे इलाज है।
7 जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए CMH पेशावर भी मुंतकिल किया गया। धमाके के बाद लेविस और FC फोर्स ने इलाका घेरे में ले लिया। पॉलिटिकल इंतजामिया ने एजेंसी हेडक्वार्टर्स अस्पताल बाजोड़, खार और गलनई मोहम्मद एजेंसी में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सईद बाचा, एक्सप्रेस न्यूज, मोहम्मद एजेंसी। और अभी कुछ बात करेंगे PTI चेयरमैन इमरान खान की। चीचा वतनी में तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में इमरान खान एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं वजीर आजम करप्शन करे तो खुद को बचाने के लिए इदारे भी तबाह कर देता है। मैं नून लीग के लोगों से पूछता हूं कि क्या आपको फिक्र नहीं अपने बच्चों के मुस्तकबिल की? क्या आपको ये नहीं पता कि जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है वो सारे मुल्क के इदारे तबाह करके चोरी करता है, और वो चोरी बचाने के लिए मजीद मुल्क को तबाह करता है? क्या किया नवाज शरीफ ने? सारे पाकिस्तान के इदारों को जिन्होंने इसको पकड़ना था उनको काबू पा गया। नैब जो छोटे छोटे चोरों को पकड़ती थी, जिसका काम था नवाज शरीफ से पूछती कि किधर से आएगा पैसा नवाज शरीफ तुम्हारे पास, नैब चुप। FBR जो टैक्सों की बारिश करके महंगाई कर करके गरीब का खून चूस चुकी है। यह आपको बताएं, वजीर आजम नवाज शरीफ ने अमेरिका के दौरे पर जाने से पहले अस्करी और कश्मीरी क़यादत से मुशावरत की। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद वजीर आजम ने मुजफ्फराबाद जाकर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आजाद कश्मीर के रहनुमाओं को एतमाद में लिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खालिद महमूद। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए अमरीका रवानगी से पहले इस्लामाबाद में अस्करी क़यादत और मुजफ्फराबाद में कश्मीरी रहनुमाओं से मुशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में दाखिली और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमरीका पर हिकमत अमली तय की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के मुख्तसर दौरे पर मुजफ्फराबाद भी पहुंचे। वफाकी वज़ीर बरजेस ताहिर, सेनेटर परवेज रशीद, तारिक फातमी और आसिफ किरमानी भी साथ थे। आज़ाद कश्मीर के सदर मसूद खान और वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर ने इस्तकबाल किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान कश्मीर कॉज को हर फोरम पर सपोर्ट करेगा। जनरल असम्बली में मसला कश्मीर को भरपूर उजागर किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर आबदीदा हो गए। हुर्रियत रहनुमाओं ने एतमाद में लेने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मरी अपनी रिहाइशगाह चले गए। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। MQM के रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल को 6 साल गुजर गए मगर जिम्मेदार अब तक अंजाम को नहीं पहुंच सके। लंदन पुलिस ने इमरान फारूक के कत्ल को मंसूबा बंदी का नतीजा करार दिया है। पाकिस्तान में गिरफ्तार मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अब तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर नहीं किया जा सका। लंदन में MQM के रहनुमा इमरान फारूक के कत्ल को 6 साल बीत गए मगर स्कॉटलैंड यार्ड किसी कातिल को पकड़ सकी, ना ही पाकिस्तान में मुकदमा आगे बढ़ रहा है। इमरान फारूक की 6ठी बरसी पर बरतानवी तहकीकाती इदारे स्कॉटलैंड यार्ड ने इंकशाफ किया है कि मुत्तहिदा के रहनुमा को मंसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। इस केस में अब तक 4,500 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश और 7,500 से ज्यादा दस्तावेजात का जायजा लिया गया है। इमरान फारूक कत्ल केस के सिलसिले में पाकिस्तान में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान खालिद शमीम, मोहसिन अली और मौज़म अली जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद हैं। इन मुल्जिमों के खिलाफ अदालत में चालान पेश हो चुका मगर FIA ने अब तक इस मुकदमे का प्रोसिक्यूटर मुकर्रर नहीं किया। ज़राए का कहना है इस मुकदमे में प्रोसिक्यूटर की तकर्रुरी के लिए 3 नाम वजारत दाखिला को भिजवाए गए थे मगर तीनों ही मुस्तरद कर दिए गए। इमरान फारूक कत्ल केस की तफ्तीश के लिए स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस 2 मरतबा मुल्जिमों से तफ्तीश कर चुकी है। इसके अलावा FIA के साथ शवाहिद का तबादला भी किया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं पाकिस्तान समेत कई ममालिक में साल का तीसरा चांद ग्रहण आज रात देखा जा सकेगा।
जिसका दौरानिया 4 घंटे होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:55 पर शुरू होगा। आज रवा साल का तीसरा चांद ग्रहण होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में चांद ग्रहण रात 9:55 पर शुरू हो रहा है। रात 11:55 पर मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, जबकि चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:54 पर होगा। क्या चांद ग्रहण खवातीन खुसूसन हामला खवातीन पर असरअंदाज हो सकता है? इस हवाले से लोगों ने मिले जुले ख्यालात का इजहार किया। इन चीज़ों पे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए और जैसे आपकी ज़िंदगी गुजर रही है उसको उसी तरह गुजारें। असरात कोई कुछ भी नहीं होते वैसे तो, बस हम आपको निकलना नहीं चाहिए ज़्यादा चांद ग्रहण में। गायनकोलॉजिस्ट समीन ज़हरा कहती हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खवातीन अपने काम रूटीन के मुताबिक करें। जितनी भी साइंस की रिसर्च है इसमें कोई इस तरह का इसका कोई ताल्लुक ज़ाहिर नहीं हुआ कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के हमला खवातीन के ऊपर कोई नुकसानात ज़ाहिर नहीं हुए। मजहबी स्कॉलर कारी जवार के मुताबिक इस्लाम में चांद ग्रहण के असरात का कोई जिक्र नहीं, ये सिर्फ अभाम है। बहुत सारी चीज़ें हमने मन घड़त, जिसे हम रसूम जाहिलिया कहते हैं, वो अपने तौर पे बना रखी हैं। कोई किसी तरह मंसूब कर रखा है, कोई किसी तरह मंसूब कर रखा है, लेकिन शरन इसकी कोई ऐसी हैसियत, कोई कुरान व हदीस में ऐसा जिक्र नहीं है। पाकिस्तान के अलावा एशिया के कई मुल्कों समेत ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वेस्ट पैसिफिक आइलैंड और यूरोप में भी चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। इस साल पहला चांद ग्रहण 23 मार्च और दूसरा 18 अगस्त को हुआ था। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण पाकिस्तान के तमाम इलाकों में देखा जा सकेगा। शीशावती में तहरीक इंसाफ का जलसा। इमरान खान कहते हैं मियां साहब फीते काटने से आप बच नहीं सकेंगे। FIA कहां है, वजीर आजम को क्यों नहीं पकड़ती? इसलिए बता दूं, ख्वाजा इजहारुल हसन को 5 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। फारूक सत्तार कहते हैं इस जिल्लत से बेहतर है कि हम इज्तिमाई गिरफ्तारियां दे दें। और सानिया बल्दिया अदालत में मफरूर मुल्जिम हमाद सिद्दीकी और रहमान उर्फ भोला की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है।